students, myself Rakhi Kumari, Assistant Professor in the Department of Electronics and Communication Engineering in ABS Engineering College, Ghaziabad, affiliated to Dr. IPJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. Today in the series of optical communication lectures, I am going to discuss with you modes in a planar guide, phase and group velocity. In the today's lecture, first I am going to discuss with you modes in a planar guide. So, before going through that, we have to discuss about the guide. So, what is guide here? Waveguide, and our waveguide which we are considering for the optical communication is the optical fiber. This is just a recap of whatever we have studied in the previous lectures of this series. Then we will go through the planar mode. So waveguide is differentiated into two parts normally for analysis purpose, non-planar and the planar. So we have already gone through the optical fiber waveguide, but we have not discussed about the non-planar and the planar waveguide mode. So in this in the coming slide, I will discuss with you planar and non-planar. Then we will discuss about the modes. After that, we will discuss about the general perception of the phase and group velocity which exists during the any type of communication. And in continuation with that, we will go through the phase and group velocity in the optical fiber. So, here comes the planar guide. So, before discussing anything about the planar guide, because our discussion here is based upon the planar guide, we have to know about the what is mean by the non-planar guide. If we are going to discuss about the planar guide, first of all we have to know about what is non-planar. So, what is the non-planar waveguide? If we are considering in a non-planar waveguide the two-dimensional transverse optical confinement. So, normally in any type of analysis there exists 1D, 2D and the 3D. So, first thing which come across in the non-planar case, that it is a two-dimensional transverse optical confinement. But when we are talking about the planar one, it is a only one. That means this one. And the second one thing, that is transverse. I will discuss this thing. What is the transverse meaning? This is about to be discussed. Transverse optical confinement, that means we are talking about the optical rays. The core is surrounded by the cladding in all transverse direction, that is in the two-dimensional x and y both. When we are talking about the 1D, that means out of any, let us example we are considering the Cartesian coordinate. So, x, y and z. So, out of this three coordinate, we are considering only one, either x, either y, either z, when we are talking about the 1D. But when we are talking about the 2D, that means I am considering x, y or y, z or z x. These are the three groups. Out of these three groups, I can consider any one of this. Then it will called as the 2D. And when we are talking about the 3D, that means we are considering all the three coordinates. That means we have no more option, we have just a single option. So, if we in a non-planar waveguide, we are considering the two-dimensional confinement of the optical, then that is why it is coming an xy here, and in the case of planar it is coming only nx. So, we can easily differentiate that here the terms comes in the
2 dimensional, here the comes in the 1 dimensional. So core is surrounded by cladding in all transverse direction. That means कि आपका जो core है it is surrounded by the cladding in all the transverse direction. Transverse term means perpendicular. Transverse terms means perpendicular, and if your core is surrounded by the cladding in all type of waveguide, optical fiber which we are studying, core is surrounded by the cladding. But if the core is surrounded by the cladding in all the transverse direction, then it is called as the non-planar waveguide, and in that case n is basically our refractive index. N is our refractive index. So n is a function of x and y. That means n is going to vary with x coordinate also as well as y coordinate also. But when we are talking about the planar waveguide, core is sandwiched between cladding layer in only one direction. That means there is no consideration of two direction, either it will consider x, y or z, either of the three. So it will sandwiched between the core is sandwiched between the cladding layer in only one direction, and in that case our refractive index, that is n, is a function of either x, either y or z. It can't be a function of x and y both, and in that case refractive index profile is always written as n under bracket x. So this is the basic difference between the non-planar and the planar waveguide. Again I am repeating, in the non-planar case our optical confinement is in the two dimensional transverse. That means our core is surrounded by cladding in all transverse direction, and refractive index profile is a function of x and y or y and z or z or x. But in the planar waveguide our core is sandwiched between the cladding in only one direction, either we can say in x or y or z. It can't be possible to have a in all the three direction, and our refractive index profile is a function of either x, y or z. So this is the difference between a planar and a non-planar waveguide, and in the next coming slide I am going to discuss about the planar one. Now in the planar waveguide which we are going to consider is the conceptual transition from ray to wave theory. We are moving, when we are talking about the modes, that means we are moving towards the wave theory, and that is why in the previous lecture we have gone through the wave equation which exists in the electromagnetic wave propagation. So and in the when we are talking about the rays, when we are talking about the total internal reflection, at that time we are considering about the ray. That is why it is saying that when a transition from ray to wave theory, and in coming lectures we are moving towards the ray. जब हम बात कर रहे थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की, उस समय हम बात कर रहे थे रे की, बट व्हेन अब हम वेव पे आ रहे हैं, दैट्स व्हाई आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस बताए थे. नाउ मोनोक्रोमैटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग प्लेन में इन द डायरेक्शन ऑफ अ रे पाथ विद इन द गाइड. गाइड के अंदर आपका एक वेव प्रोपोगेट कर रहा है, एंड दैट वेव इज अ, फॉर एग्जाम्पल वी आर अज्यूमिंग इट एज अ मोनोक्रोमैटिक. इज नॉट पॉसिबल हर केस में वो मोनोक्रोमैटिक ही रहे, बट यहाँ पे जो हम एनालिसिस के लिए कंसिडर कर रहे हैं वी आर कंसिडरिंग द मोनोक्रोमैटिक. और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का n1 है तो अकॉर्डिंग, अब जब n1 किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थी, n1 हमारे कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और जब कोई भी रे वेव उसके अंदर जाएगा, कोई भी रे उसके अंदर जाएगा तो उसकी वेवलेंथ में चेंज होगा. अगर इनिशियली उसका वेवलेंथ फॉर द फ्री स्पेस इज लैम्डा, तो आफ्टर एंटरिंग इनटू द कोर इट्स wavelength changes to n upon lambda, lambda upon n1 it changes, and propagation constant जो
नॉर्मली k है which is denoted by 2 pi by lambda, already discussed in the previous lecture. तो जो propagation constant हमारा 2 pi upon lambda है at the free space, that will change into n1 into k. So we can easily see that refractive index plays a very important role in the wavelength, क्या वैल्यूज होंगी, प्रोपगेशन कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी. अगर वो डिपेंडेंट है आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, तो ऑफ कोर्स वी कैन से दैट होल प्रोपगेशन कांस्टेंट, होल वेव प्रोपगेशन जो प्रोसेस है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द अवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब इन द इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं दैट अ फिगर दैट इज रिप्रेजेंट, जो चीज़ यहाँ स्टेटमेंट्स में है दैट इज शोन हियर कि वेव आपका एक एंगल से, किस एंगल से इंजेक्ट हुआ, थीटा एंगल से ये इंजेक्ट हुआ. थीटा इज द एंगल जिससे इंसिडेंट वेव कोर क्लैडिंग इंटरफेस, आपका ये रीजन पूरा दैट इज अवर कोर और ये हमारा क्लैडिंग का रीजन है और ये हमारा कोर है. दैट्स वाई कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका गिवन है n1 और क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है n2. अब इफ एनी रे is incident on the core cladding interface, interface is always called as a boundary between some two different dielectric medium, and core and cladding of course has a different dielectric medium. तो जो थीटा एंगल से आपका ये इंसिडेंट एंगल हुआ, तो उसको and then it is going through the total internal reflection, as you already know it will not go outside the core into the cladding. ये फिगर में दिखाया हुआ है, ये सिंपल है आपका रे डायग्राम दिखाया हुआ है. और इसमें क्या किया है, इफ थीटा इज द एंगल, तो इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक किया. ऑफकोर्स थीटा एंगल से तो ऑफकोर्स ये एक्स वाई एंड जेड किसी एक डायरेक्शन में तो नहीं है, किसी और डायरेक्शन का है. तो इसको हम थीटा एंगल पे, तो इसको हमने दो कंपोनेंट में ब्रेक किया है, बीटा जेड एंड बीटा एक्स. ओके, ऑलरेडी जो कि हमने इसमें देखा कि आपका जो k है, k is our propagation constant. It is always also denoted as beta sometime or gamma sometime. अब so when depending upon the refractive index, आपकी ये वैल्यू जो है propagation constant की, ये चेंज हो जाती है n1 की. so bz क्या हो जाएगा, bz will be n1 k cos theta and of course bx should be n1 k sin theta. So this will be two different components of the propagation constant in the transverse direction. But आपका ये जो wave है, it is propagating in the z direction. Always keep in mind in all our analysis, we will always assume that our wave is propagating in the z direction. So we have got a two different component, one bz and other one is the bx. we will see this in further analysis. दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर दिखा रहा है, दैट मीन्स कि दो डिफरेंट रे, अगर हमने एक रे लिया ये कोर एक्सिस से, अगेन इट इज मेकिंग द थीटा एंगल. दूसरा ये हुआ आपका जो कि अगेन मेकिंग अ थीटा एंगल विद द फाइबर एक्सिस. अब ये जब प्रोपोगेट करके पहुंच रहा है एंड, अब ये आगे जाके अगर समेशन या डिफरेंस होगा दो रेज का, ये दोनों रेज हैं, दो रेज साथ में आपके एंड पॉइंट पे मिल रहे हैं, बट आइदर हम उस दोनों उस रेज को की वैल्यूज को ऐड करेंगे या डिफरेंस करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन कि उसका फेज वैल्यू क्या है, फेज कांस्टेंट क्या है. अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो तरह का इंटरफेरेंस होता है आपका. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा उस केस में दोनों में समेशन होगा, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उस केस में डिफरेंस होगा. तो अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल वी आर शोइंग द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब भी होगा तो ऑलवेज कीप इन माइंड सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी और एज इट इज मूव टुवर्ड्स द एंड
क्लैडिंग की तरफ जैसे ही मूव कर रहा है, इट्स वैल्यूज गोज ऑन डिक्रीजिंग. सो व्हाट वी आर सीइंग हियर कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर है, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल एक आपका, सम केस में आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है. इन दैट केस तो आपका जो वैल्यूज होंगे दैट शुड बी 0. अगर आइडियल कंडीशन है तो इसके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, सारे वैल्यूज एक जैसे हैं, तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका वैल्यू जो आएगा आउटपुट में दैट शुड बी 0. दैट्स वाई वी आर, अगर हम कोई वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं तो वी हैव गो थ्रू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिस केस में समेशन होता है. तो समेशन है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पे मैक्सिमम होगी एंड एज इट मूव टुवर्ड्स द क्लैडिंग वैल्यूज गोज ऑन डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली. इट इज शोन हियर एक्सपोनेंशियली होता है क्योंकि वेव इक्वेशन सारे हमारे एक्सपोनेंशियली होते हैं. अब ये चीज हमारा ये चीज आ गया. और ये देख रहे हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दिखाई गई है दैट इज इन द एक्स डायरेक्शन. अगर आप देख रहे हो तो इट इज शोन इन द एक्स डायरेक्शन. तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, आवर वेव इज प्रोपोगेटिंग इन द जेड डायरेक्शन. Our electric field is existing in the x direction. क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रहा है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसके ट्रांसवर्स में कर रहा है. ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अगेन ट्रांसवर्स में होगा. तो ये बेसिक फिनोमेनन है, एनी किसी भी मोड थ्योरी के साथ ये एप्लीकेबल है. तो व्हाट वी आर गॉन थ्रू इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, फर्स्ट वन हमने वेव को इंसिडेंट किया एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस विद थीटा एंगल और उसको हमने दो कंपोनेंट में ब्रेक किया, बीटा जेड एंड बीटा एक्स. उसकी वैल्यू है आपके पास. एंड देन वी आर सीइंग दैट इफ द वेव इज प्रोपोगेटिंग इन द जेड डायरेक्शन, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रही है ड्यू टू द वेव प्रोपोगेशन दैट इज इन द एक्स डायरेक्शन. और उसमें भी है कि सेंटर में, कोर की सेंटर में यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एज यू मूव टुवर्ड्स द क्लैडिंग it exponentially decays. Now the same thing here which we have the two components of the propagation constant is represented here. Beta z value is n1k cos theta and the beta x value n1k sin theta. अब now the question arises, what is the mode? What is the mode? So, जो बेसिक मोड का प्रिंसिपल हमें कहता है कि आप मोड को TE, TM इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसके आगे भी आपका सबस्क्रिप्ट लगते हैं पर एक छोटा सा है TE एंड TM. TE स्टैंड फॉर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक, and the TM stand for transverse magnetic. आपका ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक है. अब what is the meaning of a transverse? Transverse means that when we talking about the transverse electric, that indicates जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ट्रांसवर्स में होगी. That means इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करेगी. इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल इफ वी आर कंसिडरिंग दैट वेव इज प्रोपोगेटिंग इन द जेड डायरेक्शन, देन it will electric field component that is Ez which corresponds to the Z direction does not exist. आपका Ex और Ey की वैल्यू हो सकती है या फिर दोनों में से दोनों वैल्यू होगी या फिर एक की वैल्यू होगी, बट it is not possible to have a Ez value in the case of TE. Similarly, in the case of a TM, when we are talking about transverse magnetic, that means जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं होगा. दैट मीन्स देयर विल बी नो कंपोनेंट इन ऑफ SZ इन द केस ऑफ अ TM मोड. अब अगर हम इसमें सबस्क्रिप्ट में कोई भी वैल्यू डालते हैं MN या 10, कुछ भी MN की कोई भी वैल्यू हो 10, तो दैट अगेन हैव अ समथिंग स्पेशलिटी. तो उसे हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं.
तो ये तो मैंने जनरल आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए बताया. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्लानर वेवगाइड. अब प्लानर वेवगाइड में इफ वी आर कंसिडर दैट इट इज गोइंग थ्रू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देन आपका फेज अगर 2m पाई है तो देन देयर विल बी अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड m इज एन इंटीजर एंड दैट डिफाइंस द योर मोड. m की जो वैल्यू होगी वो डिफाइन करेगा कौन सा मोड है. ठीक है, अगर m की वैल्यू, अगर आपकी कंस्ट्रक्ट फेज की वैल्यू आपकी फॉर एग्जांपल आ गई 2 पाई, in that case we can easily say that m is equal to 1. तो in that case our mode, इसे हम t1 कह सकते हैं. बट अगर हमारी फेज की वैल्यू आ गई 0 तो हम कह सकते हैं t0 मोड. तो इसके बेसिस पे m के वैल्यू के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं व्हाट विल बी द मोड. द स्टेबल फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन इन द x with only periodic z dependence is known as मोड. हमारी जो वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम देख रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, तो उसकी फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्स डायरेक्शन में होगा विथ अ डिपेंडेंस ऑन पीरियोडिक डिपेंडेंस ऑन जेड डायरेक्ट, जेड में हमारा वेव प्रोपोगेट कर रहा है, ऑफ कोर्स उसके साथ डिपेंडेंसी है उसकी, तो वो कहलाता है आपका मोड. नाउ इसमें आपका मोड का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है जो उस केस में दिया हुआ था, दैट इज फॉर द 0 t0. ये आपका जो फिगर था इसमें आपका t0 के लिए था 0 मोड, m इज इक्वल टू 0 के लिए था. वी कैन इजिली से दैट यहाँ पे आपका वेव का जो शेप है, आपका पूरा वेव कंप्लीट भी नहीं हो रहा है. दिस इज जस्ट अ हाफ वेव इन द केस ऑफ अ t0 एंड नाउ t1 complete wave is forming here in the case of a t1. So this is the electric field distribution in the x direction with reference to the wave propagation in the z direction for t1. In this case m is equal to 1, that is 2m pi जो हमारा फेज होना चाहिए at the end वो हमारा हो रहा है 2 pi. Similarly ये हमारा t2 का केस है, you can easily see the difference. m इसके केस में 2 है, you can have the value of course कि क्या वैल्यू होगी m आपकी फेज की, और दिस इज द केस ऑफ t3. इसी तरह हम और भी बहुत सारे जितने मोड्स हैं, ये तो लोअर मोड्स के मैंने दिखा दिया आपको, यू विल हैव अ हायर मोड्स के भी आप देख सकते हो कि कैसी होगी फिगर. एंड नाउ फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी. तो जब हमारी वेव प्रोपोगेट करती है, जब सिंगल एक वेव प्रोपोगेट करती है तो हम उसकी जो वेलोसिटी होती है दैट इज कॉल्ड एज द फेज वेलोसिटी एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Vp is equal to omega by beta. But it is not possible in all the case. Of course मैंने भी एनालिसिस में आपकी एक परफेक्टली मोनोक्रोमैटिक लाइट वेव लिया, अभी जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने एनालिसिस की, बट एट दैट टाइम ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू कि ये पॉसिबल नहीं है कि हमेशा आपको एक परफेक्टली मोनोक्रोमैटिक लाइट वेव मिले. तो अगर आपको डिफरेंट रेज मिल रहे हैं हैविंग अ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्रोपोगेशन कांस्टेंट एंड ऑल दिस वेव वेलोसिटी, सो आपकी वेलोसिटी डिफरेंट आपकी है लाइट रेज की, तो ऑफ कोर्स दैट विल अफेक्ट द वेलोसिटी एट विच द वेव फ्रंट इज मूविंग. दैट इज लाइट एनर्जी इज जनरली कंपोज सम ऑफ प्लेन वेव्स कंपोज डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की रहती हैं, और दिस पैकेट डज नॉट ट्रैवल एट द फेज वेलोसिटी. किसी इंडिविजुअल वेव की फेज वेलोसिटी से तो वो ट्रैवल नहीं करेगी. तो हम कैसे डिफाइन करेंगे उसके केस में कि वेलोसिटी क्या है जो वेव हमारी प्रोपोगेट कर रही है वेव गाइड में. तो दैट इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ ग्रुप वेलोसिटी. तो हम जब भी वेवगाइड के अंदर प्रोपोगेशन की बात करेंगे वेव्स की, तो हम कभी भी फेज वेलोसिटी के टर्म्स में कर नहीं सकते, क्योंकि इट्स अ वेरी रेयर थिंग कि एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की मोनोक्रोमैटिक लाइट प्रोपोगेट कर रही है. नॉर्मली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट वेलोसिटीज की लाइट प्रोपोगेट करती है. तो दैट इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ ग्रुप वेलोसिटी एंड दैट इज गिवन बाय Vg upon Vg is equal to del omega upon del beta. Of course omega is your angular frequency and beta is your propagation constant. Here it is
गोइंग जस्ट ट्राई टू रिप्रेजेंट द फिगर जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की जब आपकी वेव प्रोपोगेट करती है तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ इन्वेलप. जब उसको पूरा कंबाइन करते हैं इट्स रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इन्वेलप एंड इसकी वेलोसिटी हमारी Vg से डिफाइन होती है. नाउ जस्ट phase and group velocity in the case of optical fiber. ऑप्टिकल फाइबर में जो वेव प्रोपोगेट कर रहा है दैट इज प्रोपोगेटिंग इन द, जो हमने अभी तक एनालिसिस में की है कि वेव हमारा प्रोपोगेट कर रहा है z डायरेक्शन. और अगर वेव प्रोपोगेट कर रहा है z डायरेक्शन में तो एज सोन इन द प्रीवियस स्लाइड वेव प्रोपोगेट कर रहा है z डायरेक्शन में और हमारा प्रोपोगेशन कांस्टेंट इन द z डायरेक्शन है बीटा z इक्वल टू n1 k cos थीटा. तो आई एम जस्ट टेकिंग दैट वन हियर, बीटा इज इक्वल टू n1 k cos थीटा. और अगर cos थीटा अगर हम इसको ले रहे हैं तो cos थीटा अगर हम 0 लेते हैं क्योंकि आपका z डायरेक्शन कोई कंसिडर कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन में कंसिडर नहीं कर रहे हैं, प्रोपोगेशन हो रहा है, तो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज n1 k. इफ यू आर अज्यूमिंग कि थीटा आपका 0 है तो आपका n1 k हो गया. k की वैल्यू विच इज अवर प्रोपोगेशन कांस्टेंट इज 2 pi by lambda ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो दिस कैन बी n1 2 pi upon lambda. इफ और फिर हमें ये नोन है कि हमारा जो लैम्डा होता है आपका जो c होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय f इंटू लैम्डा. सो लैम्डा कैन बी रिटन एज हाउ c बाय f. सो हमारा जो ये इक्वेशन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, n1 2 pi by lambda जो है हमारा इसे हम लिख सकते हैं n1 2 pi lambda is equal to c by f, c न्यूमरेटर में f, which can be written as n1 2 pi f is equal to our angular velocity and which is represented by omega, n1 omega by c, which is shown here. Now phase velocity as always given, it is given by vp is equal to omega by beta and omega 2 pi by f and beta 2 pi upon lambda. So this is f into lambda is equal to c here, and of course with respect to n1 हमारा बीटा चेंज होता है. So this is, now we are going to discuss about the Vg. Vg already known कि Vg हमारा जो होता है that is del omega upon del beta. So अगर हम इसे d omega upon d beta करें तो हम इसे d omega by d beta और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू एज दिस. और उसके बाद हमारी ऑलरेडी वैल्यूज मिल चुकी हैं d अपॉन डी लैम्डा और सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ बीटा हेयर. बीटा की वैल्यू हमने और ओमेगा की वैल्यू जब हमने सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा जो टर्म्स आया उसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें एंड आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग वी विल गेट दिस वैल्यू. एंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे ऑफ कोर्स हम ओमेगा की रखेंगे 2 pi f अपॉन 2 pi by lambda. यहाँ हमें ये ध्यान रखना है हम बीटा की वैल्यू जहाँ से लेनी है फ्रॉम n1 ओमेगा बाय c. यहाँ से बीटा की हमें वैल्यू लेनी है और ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी नोन है हमें. देन इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये डिनोमिनेटर में आएगा, ऑफ कोर्स इसे कैंसिल करते चले जाएं और उसके बाद लैम्डा स्क्वायर हम करते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग लैम्डा डी n1 अपॉन डी लैम्डा माइनस n1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर. लैम्डा ये कैंसिल तो f इंटू लैम्डा इज इक्वल टू c और इसको हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं.
ये वैल्यू। अब ये यहाँ पे आपको जस्ट इसको साइन रिवर्स कर दें तो यहाँ पे जो माइनस साइन है वो हमारा खत्म हो जाएगा एंड वी विल गेट दिस इक्वेशन। और फिर इसको, इस कंप्लीट वैल्यू को कैपिटल N सबस्क्रिप्ट में G से रिप्लेस करें एंड व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इज group index of the guide. So here till now we have discussed about the mode which comes in the optical fiber and the phase and group velocity related to that. So thank you for attending today's lecture.